So hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and here I am with you Ganima. So today we have Pammi Marodia with us. She's a graduate from NSUT and her expertise is in LinkedIn marketing and content. And she has helped many founders and brands to grow on LinkedIn. And best part is she has 50,000 plus followers on her LinkedIn account. So please introduce yourself and tell us about your job and what you do on LinkedIn. Yeah, so hi people, myself Pammi Marodia, and I basically belong from a town area in Rajasthan. So I did my schooling from there only. Then to explore the world, at that time I was pretty much interested in law. So I thought that I would pursue BBA from NSIT and then would go for a law degree. But nothing of that actually have worked. So I went in NSUT for my graduation, and recently I have graduated from there. And in between the lockdown, I started to make an audience over LinkedIn. The main reason was my love for writing. I love writing. Writing and dancing are the only thing I can do for a living. So yeah, I started to build an audience, but उस time मैंने ये चीज नहीं सोची थी कि I have to make an audience and all. I was just writing it because I wanted to. And then gradually people started relating with it, and I got a good following also. But more than the following, I think I have built a good community, which matters the most to me. And basically after some point of time when I had around 40,000, I thought that I can also help people build their brand as well. Because till then I was helping people with my writing, but I was not much interested in that. क्योंकि LinkedIn पे लिखना और blogs लिखना, website ये लिखना completely different stuff. So मैंने ये सोचा कि let's try LinkedIn branding, let's help people. And I had around 4 to 5 clients with me in the initial stage, but then I got an offer from Class Plus for a part-time job. So since I was dying to take a corporate experience, a real life corporate experience, so I accepted their offer and kind of post my freelancing. And now I have again started it. So yeah. Cool. And like, what was the motive behind your LinkedIn journey, or what came to your mind that yeah, I should come to LinkedIn and I should build a community in it. बेसिकली ये सोचा ही नहीं था कि ऑडियंस बनानी है नॉल, बट ये मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लिंक्डइन पे फॉलोअर्स नाम की भी कोई चीज होती है. जब हम आई गेस हमें कोई इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट मिला था कि आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है तो और लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, तो हमने नॉर्मली वही किया. लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि कुछ लोग ना उस पर पोस्ट भी करते हैं लिंक्डइन पे. तो आई थॉट कि यार मैं भी लिख कर देखती हूँ, क्योंकि मुझे लिखने में तो इंटरेस्ट हमेशा से ही है. तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और आई गेस मेरे फर्स्ट पोस्ट पे 35 लाइक्स थे, और मोर देन द लाइक्स कमेंट्स काफी थे. तो मैंने सोचा कि यार ये सही है, आप कुछ लिखते हो, लोग अपने ओपिनियन देते हैं, ऑल दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी लिखना स्टार्ट करूंगी. एंड उसके बाद मैंने पता नहीं क्या हैबिट ही बन गई थी, रात को सोने से पहले आई यूज्ड टू राइट ऑलवेज. सो उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ऑडियंस भी बिल्ड होती है. एंड इवन आफ्टर 8 months realized कि LinkedIn को you can monetize it, like you can encash your audience and all that or build an audience. So till 8 months I had around 6,000 followers. और जब मैंने किसी का वो लिया था LinkedIn वर्कशॉप, तो उसके बाद मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज पता चली थी कि हाँ ऐसे यू कैन बिल्ड अ रियल ऑडियंस. और उसके बाद आई ग्रो टू 50,000 in like 4 to 5 months. Okay, so that was a really good growth, like exponential growth for you, right? Okay. Exactly, I never expected that. हाँ. तो लिखना अच्छा लगता था, सो आप एक रात पहले लिख देती थी, एंड लाइक आप कुछ भी जनरली लिखती थी या फिर आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि हाँ इस टॉपिक पे लिखना है मुझे? नहीं, मैं मतलब पहले ये था कि मेरे दिमाग में जो भी आता था वो मैं लिख देती थी. माय फर्स्ट पोस्ट वाज अबाउट कि जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, स्टार्टअप क्यों करना चाहिए एंड ऑल दैट. और मतलब ग्रेजुअली जो भी माइंड में आता था वो लिखा था. लेकिन नाउ आई रियलाइज दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटजी. तो मतलब हर सब कुछ नहीं लिखना चाहिए, यू शुड बी लाइक निच बेस्ड, कि कम से कम 3 डोमेन्स आप चुन सकते हो, उन 3 के बारे में लिखो. बट ऐसा नहीं कि तुम दुनिया भर की हर चीज लिख रहे हो, क्योंकि उससे मतलब ऑडियंस नहीं बन पाती. Okay, so why one needs LinkedIn and how does it help someone? बेसिकली 2 चीजें हैं. प्रोफेशनल तो सबको पता है, यू कैन गेट लीड्स, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज. बट मेरे हिसाब से इफ यू आर कंसिस्टेंट ऑन लिंक्डइन, आपकी एक बहुत प्यारी कम्युनिटी बन जाती है. मतलब मेरे पास इतने सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं जो शायद मेरे पास ऑफलाइन भी नहीं है. आई कैन नेम
देयर इज अ गर्ल पूजा दास, वो मुझे मतलब ऑनलाइन मिली थी, एंड वो मैं किसी भी अपनी ऑफलाइन दोस्त से भी कंपेयर करूँ तो आई थिंक वो उनसे ज्यादा बेटर है। तो मतलब मतलब ऐसा नहीं होता ना कि तुम सबसे बात कर रहे हो, तुम्हारे से प्रोफेशनली हेल्प करें, देयर आर पीपल जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो आई फील कि आप बहुत ग्रेट कम्युनिटी बना सकते हो, और इफ यू हैव दैट बिजनेस माइंडसेट, वो बनिया वाला माइंड है, तो तुम इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो काफी ज्यादा मतलब। So you reached 50,000 followers in like after first 8 months you had 6,000 followers, 6,000, 7,000, and then in next 4 to 5 months you had you reached 50,000, right? So what was the strategy to reach there, or if you would like to discuss some 2 or 3 strategies that one can apply to get more searches, or like to get more okay, so get उसको profile engagement and all. yeah, more engagement and like yeah. Yeah, so first thing is consistency. मुझे लगता है कि क्योंकि मैं 7 महीने से कंसिस्टेंट थी, इसलिए मुझे वो बूस्ट मिला। ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं उन 6 महीने में पहले दिन से मैंने ऐसा कुछ किया होता कि मुझे बूस्ट मिल जाता। तो सबसे पहले बात है कंसिस्टेंसी। दूसरा क्वालिटी पोस्ट। मैंने ये चीज की थी कि पहले मैं जैसे कुछ भी लिख देती थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को ये किया था कि नहीं, अगर अपने को कुछ लिखना है तो इट शुड बी आइदर फनी और आइदर वैल्यू जनरेटिंग, इन दो के अलावा मुझे कुछ नहीं लिखना। तो मैंने फिर उस पे फोकस किया था। माय फर्स्ट क्वालिटी पोस्ट वाज हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स, एंड इट क्रॉस, मतलब उस टाइम मेरे शायद 30-35 लाइक तक आते थे, और उस पोस्ट पे मेरे अराउंड 400 लाइक्स थे। तब मुझे समझ में आया कि मेरी ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट है, और वैल्यू जनरेटिंग पोस्ट पे एंगेजमेंट आती है, तो और नहीं आती तो इट कैन इम्पैक्ट समवन्स लाइफ। तो मैंने वहां से शुरू किया था, और उसके बाद मैंने या तो क्वालिटी कंटेंट डाला है या फनी कंटेंट डाला है, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग जो फनी था, तो उससे मुझे लगता है कि काफी ग्रोथ होती है। सो फर्स्ट कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंटेंट, और तीसरा होता है कम्युनिटी बिल्डिंग। मैंने मतलब अपने आसपास के, मैं पहले कभी किसी के पोस्ट पे ना ज्यादा कमेंट्स नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि जो फेलो फ्रीलांसर्स हैं, मैंने उनके पोस्ट पे कमेंट करना स्टार्ट किया, उनके पोस्ट को लाइक करना स्टार्ट किया, और उनके डीएम्स में उनसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की, और बहुत बेसिक कॉन्वर्जेशन जो मैं किसी से इंस्टाग्राम पे भी कर लूंगी। तो मतलब बहुत, मतलब कुछ प्रोफेशनल नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि मैं कई लोगों से कॉल पे कनेक्ट हुई, और कई लोगों से मैंने एक रियल लाइफ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। तो उससे क्या होता है कि आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ती है और आपको कम्युनिटी का भी फायदा होता है। सही है, ये 3 चीजें आई गेस। और हाँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आपकी प्रोफाइल पे कोई लैंड करता है, तो उसको प्रॉपरली समझ आना चाहिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। तो आई गेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी कमेंट्स, क्वालिटी कंटेंट, एंड बिल्डिंग अ कम्युनिटी। अगर आप ये 4-5 चीजें कर रहे हो ना कंसिस्टेंटली, तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा। So how much consistent do you think? Like एक हफ्ते में कितनी पोस्ट, एक महीने में कितनी पोस्ट, कोई आइडिया, रफ फिगर? I guess 5 posts a week are a really good figure, but वो maintain करना बहुत hard होता है। Even I can't maintain that. इसके लिए ना एक चीज होती है कि आप मतलब एक पर्टिकुलर डे में सारे के सारे पोस्ट अपने डिजाइन कर लो, मतलब बना लो। लाइक आप संडे को अपने 5 पोस्ट लिख लो, ताकि आप कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको हर वीक मतलब हर वक्त राइटिंग का भी आपका मन नहीं करता, तो आप वो स्किप कर देते हो, और इससे आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप एक ही दिन जब आपका लिखने का मन है, उसी दिन आप अपने 5 पोस्ट डिजाइन कर लो टू स्टे कंसिस्टेंट। Okay. And a lot of people say कि उनके पास कुछ like पहला पोस्ट है, तो उनके पास लिखने के लिए नहीं है, या फिर वो क्या पोस्ट करें एज अ कॉलेज स्टूडेंट, वो क्या पोस्ट करें, या फिर उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो कोई क्या पोस्ट कर सकता है अगर शुरुआत भी करनी है, तो उसको नहीं समझ आ रहा। इवन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू आस्क मी दिस कि हमें पोस्ट तो करना है, बट हमें ये नहीं पता क्या करें। तो क्या सोचती है ये सब चीजें? तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो मुझे लगता है कि जिसको राइटिंग आती है उसको एडवांटेज तो रहेगा। मतलब जिसको पसंद है, राइटिंग आती तो किसी को भी नहीं है, बट जिसको पसंद है उसको एडवांटेज है, क्योंकि आई डोंट थिंक अगर किसी को राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक कंटेंट क्रिएट करेगा। पहली चीज, पर्सनल ओपिनियन मेरा। और दूसरी चीज की क्या लिखना चाहिए, इसमें मैंने एक पोस्ट भी डिजाइन किया था। बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद योर लाइफ स्ट्रगल्स। फेलियर तो कुछ नहीं होता है, लाइफ के जो लर्निंग्स है, हमारे अचीवमेंट है, हम सबके पास कुछ ना कुछ होता है जो मतलब बर्थ होता है टेलिंग टू द पीपल। जैसे जैसे आप एनएसआईटी में एंटर किए, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपकी उम्मीदों पे एनएसआईटी खड़ा उतरा या नहीं उतरा, कुछ भी मतलब हाउ वाज योर डे वेंट। इवन जब मेरे पास कंटेंट आइडियाज नहीं होते थे, तो मैं ये सोचती थी
कि आज पूरे दिन में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो शायद जिसपे मैं कंटेंट बना सकती हूँ। और अगर आप नोट करो तो हमारे साथ पूरे दिन में एक ऐसी चीज होती ही होती है जिसपे कंटेंट आराम से बन सकता है। लाइक वो आपको फिर वो कंटेंट माइंडसेट चाहिए बस कि हाँ किस पे मैं कंटेंट बनाऊं। तो यू कैन स्टार्ट विद योर लाइफ, जिसमें आप अपने लाइफ के स्ट्रगल्स फेलियर, हालांकि दोनों शब्द शायद नहीं होते हैं, इट्स लर्निंग, बट फिर भी अचीवमेंट्स हो गए, कोई भी आपकी जनरल थॉट है किसी चीज को लेके, तो आप उस पर कंटेंट बनाओ। दूसरी चीज होती है कि जैसे आप कोई भी पोस्ट रीड करते हो तो हम हर वक्त ये जरूरी नहीं होता कि हम उस चीज से एग्री करें, है ना। जैसे समवन इज सेइंग इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना चाहिए और यू आर नॉट एग्रीइंग विद दैट, तो यू गॉट अ कंटेंट कि हाँ मैं इंडिया के एजुकेशन पे कुछ लिख सकता हूँ। इस तरीके से मतलब जब आप रीड करते हो ना ज्यादा तो आपको आइडियाज आने लग जाते हैं। द थर्ड थिंग इज इंस्टाग्राम पे रील्स जो आती है ना, मतलब कुछ तो फालतू रील्स होती है, कई होती है जो काफी अच्छी अच्छी होती है जिनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, जैसे अंकुर वारिकू की अगर रील्स वगैरह होंगी। तो मैंने मतलब 2 दिन कंटेंट आइडिया रील्स से लिए थे। मतलब वही मतलब उन कंटेंट को अपने वर्ड्स में आप फ्रेम कर देते हो तो आपके कंटेंट बन जाता है। और फोर्थ होता है कि जैसे लिंक्डइन के ऐसे टॉप क्रिएटर्स हैं जिनके पोस्ट वायरल होते हैं, ठीक है, या जिनका कुछ अच्छा हो, जैसे आपका भी कोई होगा फेवरेट क्रिएटर ऑन लिंक्डइन, ठीक है, तो आप उसकी है। हाँ हाँ। Cool. हाँ, तो आप उसकी प्रोफाइल पे गए मान लो और आपने देखा कि हाँ ये इसके टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट है, तो आपने उसी के कंटेंट को अपने वर्ड्स में फॉर्म कर लिया। रिमेम्बर सिर्फ एक चीज करनी है कि जब आप फर्स्ट लाइन लिख रहे हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को एक तरीके से चुल मचे कि आगे क्या आगे क्या है। सेकंड पॉइंट दैट यू सेड कि रील से आपको मिल जाता है या फिर अगर आप किसी और का कंटेंट अपने वर्ड्स में, so I just wrote his lecture in my words and I've posted it a few days back only, but it didn't got that much reach. I guess it was a long post, that's why. So they हाँ, got very स्टार्टिंग में जब आपके पास ऑडियंस नहीं है ना तो आप कोशिश करो कि आप शॉर्ट पोस्ट डाल रहे हो, क्योंकि लोग लॉन्ग पोस्ट तब पढ़ेंगे जब दे हैव समथिंग। कि मैंने पहले शॉर्ट से स्टार्ट किया, अब मुझे पता है कि मेरे पास ऑडियंस है कि कोई ना कोई तो लॉन्ग पोस्ट पढ़ ही लेगा, तो लॉन्ग पोस्ट स्टार्ट करो। and how many founders and brands have you helped till now in LinkedIn or नॉट marketing? मच। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती तो इस बारे में, तो ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग जो मैं लॉन्ग टर्म देखती हूँ। मतलब मैं फ्रीलांसिंग बहुत टाइम पास में लेती हूँ ऑनेस्टली, और लिंक्डइन को भी बहुत न्यू लेती हूँ क्योंकि मुझे राइट करना अच्छा लगता है, बट मुझे यहाँ से बिजनेस बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इट्स लाइक कि मैं 2-3 क्लाइंट्स को लेके चलती हूँ अपने साथ, जस्ट फॉर कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और एक तुम्हें लग रहा है कि चलो अगर, क्योंकि द थिंग विच आई डिसाइडेड कि मैं अपने फ्यूचर में करूंगी वो अनप्रिडिक्टेबल है। इट्स लाइक आई वांट टू क्रैक एन एग्जामिनेशन जो काफी रिस्की हो जाएगा। तो वो ये उसलिए है कि अगर मैंने नहीं भी क्रैक किया तो मुझे ये ना हो कि मैंने अपने साल बर्बाद किया। सो ये 2 चीज, और तीसरी चीज की अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। सिर्फ इस चीज की वजह से मैं फ्रीलांसिंग ऑप्ट की है। तो आई लाइक मैं 2-3 क्लाइंट्स को लेके चलती हूँ, और अगर ज्यादा हो तो आई हायर इंटर्न वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके बारे में मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. So नेक्स्ट इज कि जब हम कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसमें इंप्रेशंस आते हैं, लाइक्स आते हैं। सो हमें उस पर देखना चाहिए कि हमें कितना एंगेजमेंट मिल रहा है, डज इट मैटर? और या फिर कहते हैं आप एक हाथ एक होता है कि हम लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, लाइक रैंडमली किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया जाए, या फिर लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? नहीं, रैंडम नहीं भेजी जाती। इस तरीके से होता है कि जो भी आपकी टारगेट, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर और समथिंग, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और जैसे मैं फाउंडर हूँ तो बाकी फाउंडर्स को एंड ऑल को तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो रैंडम। अब जैसे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद योर फेलो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल। एचआर से तुम कनेक्ट कर सकते हो उन कंपनी के वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, क्योंकि जब तुम पोस्ट करोगे तो वो उनको दिखाएगा और आपके चांसेस हायर के ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन रैंडम नहीं करना होता, बल्कि दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने वर्कशॉप ली थी उसमें भी यही बताया था कि जब तुम किसी को रैंडमली ऐड करते हो तो होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। आप जब पोस्ट करते हो तो आपके जो फर्स्ट 500 व्यूज होते हैं वो उनके होते हैं जो आपके फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है। तो मतलब जिनको आपने भी कनेक्ट किया उन्होंने भी कनेक्ट किया। तो अगर आप किसी रैंडम पर्सन को ऐड करते हो तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो शायद आपके पोस्ट से रिलेट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान को कनेक्ट करते हो जो रिलेट कर सकता है आपके कंटेंट से, जो आपके फील्ड का है,
तो the probability of him engaging with your post increases. So इससे तुम्हारी community ज्यादा आसानी से बनेगी. So even if you've added people randomly, तो उसको filter out कर लो अगर आपके ज्यादा connections नहीं है तो. और वरना अगर ज्यादा है तो वो filter out होना possible नहीं होता, तो आगे ध्यान रख सकते हो. So is LinkedIn for everyone? कि LinkedIn क्या सबके लिए है? What is your opinion on this? क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि यार मैं LinkedIn पे क्या करूँगा, मेरा थोड़ी कोई काम है, like तो ऐसे क्या, like is LinkedIn for everyone or not? I feel LinkedIn is for everyone, but so is Instagram and YouTube. So like आपको restrict नहीं करना चाहिए. मतलब LinkedIn is a good platform आपकी professional journey के लिए. और अगर आपको लिखना पसंद हो तो definitely अच्छा है. लेकिन आपको simultaneously other social media platform भी explore करने ही करने चाहिए. Like अगर मैं आज start करूँ ना, तो I would give myself advice कि LinkedIn को तुम secondary platform रखो और तुम्हारा प्राइमरी प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हारी रीच है वो कोई और होना चाहिए, प्रोबेबली इंस्टाग्राम और यूट्यूब. ये मतलब समथिंग वो है जो मैं रिग्रेट करती हूँ, बिकॉज इनिशियली आई हैड अ वीडियो फियर, तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह से स्टार्ट नहीं किया था, पर शायद वो तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा. बट अगर तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग मतलब राइटिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है तो लिंक्डइन इज गुड. बेसिक यही है कि लिंक्डइन भी एक्सप्लोर करो बट और भी सोशल मीडियाज एक्सप्लोर करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने. सो लिंक्डइन कितना हेल्पफुल रहता है, लाइक मैं उसमें जॉब के लिए, जॉब हायरिंग में, या फिर अगर आपको रिक्रूट करना है तब, या फिर अगर आपको जॉब चाहिए तब, सो कितना हेल्पफुल रहता है? क्योंकि जनरली अगर आप फ्रीलांसर से पूछते हो तो वो सबसे पहले कहेगा कि आप लिंक्डइन पे पहला अपना कस्टमर ढूंढ सकते हो या पहला अपना रिक्रूटर ढूंढ सकते हो. जनरली कोई फ्रीलांसर बोलता है सो, एंड देन यू कैन कम टू डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक freelancer.com एंड अपवर्क, ताकि आपके पास पहले से एक पोर्टफोलियो रहे और आपको दिखाने के लिए आपने इनके लिए काम किया है. सो व्हाट डू यू सजेस्ट? मैंने कभी फीवर पे अपवर्क पे काम किया नहीं है, बट आई फील कि लिंक्डइन इज अ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मतलब मुझे इतनी सारी इनबाउंड लीड सिर्फ लिंक्डइन से मिल जाती है. यू कैन मेक अ बिजनेस ऑफ लाइक 10 lakhs 20 lakh 1 lakh, मतलब तुम्हें जितना भी अमाउंट ऑफ बिजनेस करना है ना, तुम्हें आराम से लिंक्डइन से मिल जाएगा. एंड आई गॉट माय फर्स्ट जॉब ऑफर फ्रॉम लिंक्डइन. और तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि लिंक्डइन अपॉर्चुनिटीज नहीं देता. लिंक्डइन गिव्स यू ह्यूज अपॉर्चुनिटी. मैं वही कह रही हूँ, अगर इंटर्नशिप, जॉब, लीड्स मिलना ये तुम्हारा मेन मोटिव है तो लिंक्डइन इज प्रीटी मच गुड टू गो. या और एक चीज और कि इफ यू हैव अ सॉलिड ब्रांड, तो मतलब 90% ऑफ केस में आप बिना अपना पोर्टफोलियो दिखाए भी यू गेट एन ऑफर. मतलब ये सबसे बड़ी चीज है. मतलब आप अपना पर्सनल ब्रांड जब बना लेते हो तो पीपल ऑटोमेटिकली ट्रस्ट यू. मतलब एडवांस पेमेंट देना या बिना पोर्टफोलियो के तुम्हें हायर कर लेना. इवन व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब ऑफर, मैंने ना तो अपना रिज्यूमे भेजा था ना मेरा कोई इंटरव्यू हुआ था. इट वाज लाइक डायरेक्ट हायरिंग. सो दिस इज समथिंग योर पर्सनल ब्रांड गिव्स. एक ये सवाल और है कि जब जैसे मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू लाइक कनेक्ट विद समवन लाइक बिग प्रोफाइल, कोई भी कह रहे एक इन्फ्लुएंसर हो गया या कोई एक एचआर हो गया एज यू सेड, एंड तो कैसे कनेक्ट करें? लाइक जनरली एक उसमें ऑप्शन आता है कि आप मैसेज भेज सकते हो, सेंड अ पर्सनल मैसेज और सेंड एन ईमेल. सो व्हाट शुड डू इन दैट केस? अगर उस एचआर से कनेक्ट करना मतलब मेरे को करना ही है कि मुझे से बात करनी है एंड ऑल दैट, तो मैं उसको पर्सनलाइज्ड इनवाइट भेजूंगी. आई वुड राइट समथिंग कि जो भी है, मतलब मैंने भी अभी तक तो क्रैक नहीं किया है कि ऐसा क्या मैसेज डालूं कि वो परफेक्ट है, लेकिन मैं पर्सनलाइज्ड इनवाइट जरूर डालूंगी. बट ऐसे ही है कि चलो कनेक्ट करना है और नहीं भी हुआ तो ठीक है, तो मैं रैंडमली भी भेज दूंगी. तो डिपेंड्स, बट पर्सनलाइज्ड इनवाइट इज समथिंग प्रेफरेबल. So let me tell my viewers that I also connected with Pammi on LinkedIn, and I wrote a message. I wrote a message to her like, yeah, hey Pammi. I wrote a email to her that, hey Pammi, I'm Gani Agarwal from University first year, and then she mailed me back, replied me back. So this is how I connected with her. So you guys can also connect with to whomsoever you want to, and you just write a personal message that connects with that person. Yeah. An email would be better because मैं generally check नहीं करती हूँ मेरे request section बिल्कुल भी. Okay. At last, I would like to ask that what would be your suggestion or advice to the students or professionals out there who would like to grow on LinkedIn, or like whatever advice that helped you in your journey? First of all, be clear कि it's a long term process. ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में तुम्हारे likes आ गए या community बन गई. दूसरी चीज, don't focus on likes
एनालिटिक्स पार्ट का सिर्फ एक ही रोल है कि तुम ये देख लो कि तुम्हारे को ज्यादा क्या पसंद आ रहा है, बट डोंट राइट फॉर लाइक्स। आई सीन पीपल की मतलब ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स लगा देते हैं और फ्रेशर्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं बिकॉज दीज पोस्ट गेन लाइक्स, बट इनसे कोई तुम्हारा ब्रांड बनता ही नहीं है। ठीक है, आई हैव सीन कंपनीज की उनके लिए रियल कंटेंट जो होता है ना वही मैटर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। दूसरा, डोंट फोकस ऑन लाइक्स, and if you want to genuinely grow on LinkedIn, follow 4 points. First, optimize your profile completely. Second thing will be build a community by writing quality comments on the your targeted audience. और if you are a student तो तुम fellow student के post पे या कोई general post जिन पे तुम्हारे opinion हो सकते हैं उन पे तुम comments डालो at least 10 to 15 per day and write quality content, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी मत लिखो, एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ। I would be also posting about this content strategy वाला part on LinkedIn, so you can probably watch that as well. And चौथा, नेटवर्क करो लोगों से। इट्स नॉट कि तुम कमेंट कर रहे हो क्योंकि अगला तुम्हारे पोस्ट पे कमेंट करे, ये वाला माइंडसेट नहीं रखना है। यू हैव टू मेक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। अगर ये तुम करते हो, आई डेफिनेटली गारंटी कि नंबर बढ़े या ना बढ़े, बट यू विल गेट लीड्स, you will make a community, and ultimately that matters. Thank you so much for me. And should we go with rapid fire? So we are going to have rapid fire. Okay. Let's start with it. So you have to give one word answer or a single sentence in this. Okay. What was your first job? Class Plus as an influencer marketing campaign. What work do you hate doing in your job? My work-life balance was completely fucked up. So yeah. If you had to change your first name, what would you change it to? I would probably write my name as Kiara because मुझे वो नाम बहुत पसंद है. Okay. Yeah. Describe your style in one word. No style. I have completely zero sense about fashion. Yeah. Okay. So yes or no? In this, you have to answer yes or no. Okay. Would you ever try to stand-up comedy? No. Okay. Do you enjoy performing in front of an audience? Yes, पहले नहीं था, but now I've started enjoying it. Okay. So, do you have a bucket list? Yeah. I have like 10 to 11 things which I have to do in my life. कैसे भी करके मतलब करना है. Nice. So do you randomly give advice about social media and to someone like to your friends and mates? No, I never do that. Okay. मतलब मेरे काफी दोस्त पूछते हैं, बट मैं कभी नहीं बताती, मतलब क्या बोरिंग लगता है। Okay. So now the further questions, you have to select one option out of that. Work or play? Dance. Right. Instagram or LinkedIn? ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे जाता था, इसलिए मैंने अभी इंस्टाग्राम को मतलब डिलीट किया है। सो अभी के लिए लिंक्डइन, पर पसंद इंस्टाग्राम ज्यादा। Okay. Morning or evening? इतना नहीं है, मैं नहीं बता सकती है, मतलब इधर बहुत ही खराब है। Okay. Social time or alone time? What? Social time or alone time? Alone time. Working in a company or running a company? Running a company for sure. Right. School life or college life? School life. Okay. Okay. So this was it for today, and like it was really great to have you here on my channel. Thank you so much for coming here on my channel. I also liked it. Thank you for this opportunity.